See, last session we had a short discussion on pressure derivation and Maxwell's distribution curve, right? Today we'll do, yes, this is Maxwell distribution. Today we'll proceed to degree of freedom. Okay, now look at this. See, what is degree of freedom? Actually, if you understand this, it is very loosely defined as number of different types of motion a molecule can take. Okay, a molecule can take. Basically, it represents number of ways of acquiring kinetic energy. I'll give you an example. Acquiring kinetic energy. Okay. For example, if you have a monoatomic molecule, single atom, okay, so this molecule can go towards x-axis, linear motion possible as okay. So it can have velocity along x-axis, or it can have velocity along the y-axis, isn't it? Vy, or it can move along the z-axis, isn't it? Vz. So if you can move in three different axes, that means it can have half m vx square, half m vy square, half m vz square, right? So there are three ways of acquiring kinetic energy. So we'll say the degree of freedom will be 3. All the 3 degrees of freedom are translational in nature. Translational means linear motion. Translational or linear. Getting the point? But if you have a diatomic molecule like this, so there are 2 atoms and each may we have some relation, okay, double bond, triple bond, whatever bond, okay. So this is a diatomic molecule. The diatomic molecule क्या हो सकता है? This is a diatomic molecule, okay, like this. So together they can go towards x, together they can go towards y, together they can go towards z, right? 3 different motion possible, plus they can rotate like this. Rotational motion ऐसे possible है, isn't it? समझ में आएगा? They can rotate like this also, isn't it? ऐसा rotation भी possible है, ऐसा भी possible है, ठीक है? When they rotate like this, they get a kinetic energy of half I omega square. This is also half I omega square. Now I am not considering this rotation. Why? Because half I omega square I क्या है? Moment of inertia, right? Moment of inertia अगर axis पे particle है तो what is moment of inertia? 0. समझ में आएगा? तो half ये वाला half I omega square से you don't get any kinetic energy because the particle is on the axis only, right? So you don't get any kinetic. I is 0, ठीक है? तो you don't get any rotational kinetic energy. तो इससे मिलेगा, ये एक्सिस पे घूम रहा है तो मिलेगा, ठीक है? ये एक्सिस पे घूम रहा है तो भी मिलेगा, ओके, समझा क्या? बट ये एक्सिस पे नहीं मिलने वाला. अगर ना पॉइंट, ठीक है? तो आई कैन से हियर कि इफ आई यूज द सेम एक्सिस यूज करेगा, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z, x y z. So apart from your linear degree of freedom, you'll have rotational degree of freedom about y axis like this and about z axis like this, isn't it? ये वाला x axis वाला we will not count because I is 0 on that axis, right? ठीक है, तो we have 3 translational degree of freedom plus 2 rotational, isn't it? Total degree of freedom is how much? 5 degree of freedom. समझ में आएगा? Okay. Any questions here? अच्छा, so this is a general formula. You don't always count like this, okay? The general formula says that degree of freedom is equal to 3n minus r. N is number of atoms in a molecule, and r is restrictions, yeah, number of restrictions, you can say restrictions, okay, yeah, relation we can say. Example, see if I have to use that formula here, कैसे use करेंगे देखो, okay, we can say यहाँ पे f is equal to number of atoms तो 1 है, no restriction, no other relation, ठीक है, 0, आंसर आया 3,
ठीक है, यहाँ पे if you have to do नंबर ऑफ एटम्स कितना है 2, ओके, तो 3 into 2 minus 1 relation, okay, तो 1 you will get 5, ठीक है. Suppose we have a triatomic molecule like this. Now triatomic can be two types, ना, linear triatomic and non-linear triatomic, isn't it? ऐसा भी possible है, ऐसा भी possible है. This is called as linear triatomic. इसको बोलते हैं non-linear triatomic, right? Now how many atoms here? 3 triatomic, right? How many relations? 2. How many atoms? How many relation? 3, है ना? Can we, what do we get here? What do we get here? See, F is equal to 3 into 3 minus 2 we can do. यहाँ पे F is equal to 3 into 3 minus 3. यहाँ पे we'll get 7 and this one will get 6. I hope you are getting this. It is kind of, if diatomic molecule है, for the number of restriction मतलब क्या है? If this diatomic molecule, they have to be bounded by some bond, right? There should be some relation between them. No? Then only we call it diatomic, right? If two atoms are independent, then how it is diatomic? There has to be some relation between them, right? Some sort of bond which you have learned as डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जो भी रहेगा, ठीक है, ओके. तो ऐसे ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो 1, 2 और तीसरा मॉलिक्यूल भी आ जाए तो हैज टू बी 3 रिलेशन बिटवीन देम, दे हैज टू बी बाउंडेड बाय सम सॉर्ट ऑफ बॉन्ड और व्हाटएवर. So that is the relation we are talking about. This bar that I have drawn between the atoms, ठीक है, that is your restriction का count. समझ में आ रहा है क्या? Is making sense? ठीक है, okay. Now you must realize one more thing कि degree of freedom actually 3 types का होता है, okay. Now 3 types. This formula is important. Okay. यहाँ पर रखते हैं. Just box it so that we don't miss this out. Okay, so there are 3 types of degrees of freedom that we should know. Types. So you must have understood कि there are 3 translational degrees of freedom, right? Translation 3 types का possible है, x-axis, y-axis, z-axis, isn't it? If you can move x-axis पे, y-axis, z-axis, there are 3 maximum 3 translational degrees of freedom is possible, right? 3 dimension में, okay. And then rotational degree of freedom is also 3 actually, to be honest. See, you can rotate about x-axis, you can rotate about y-axis, you can rotate about z-axis. If you are rotating about x-axis, उसको बोलते हैं हम लोग pitch, sorry, called screw. Rotations about x-axis called as screw. Okay, rotation about y-axis is called as pitch. ऐसे ऐसे घूम रहा है, y-axis में जा रहा है तो that is called as pitch. ठीक है, अगर x में घूम रहा है ऐसे तो screw. Okay, and y में घूम रहा है तो उसको बोलते हैं yaw. Now these names are not important to you, okay, but you should know. ठीक है, it can go like this, y-axis rotation, yawing. Okay, now it is, see, in the diatomic context वहाँ पे वो जो एक रोटेशन था x वाला वो काम का नहीं था, पर हमेशा नहीं रहेगा तो जरूरी नहीं है, ठीक है. अभी ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है या डिफरेंट शेप का मॉलिक्यूल है तो रोटेशन अबाउट z एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, ऑल 3 कैन मेक सेंस. इज मेकिंग सेंस? ठीक है, ओके. So there are 3 possibilities of rotational degree of freedom as well. Okay, and lastly you have something called as vibrational degree of freedom. Vibrational degree of freedom. ठीक है, यहाँ पे actually there are n possibilities. Okay, why? Because you understand. Example लेते हैं, जैसे ये एक मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल और ये मेरा हाथ, इट रिप्रेजेंट्स अ प्लेन, ठीक है. तो ये मॉलिक्यूल इज वाइब्रेटिंग इन दिस प्लेन लाइक दिस. ओके, नाउ इट कैन वाइब्रेट इन दिस प्लेन आल्सो, in this plane also, in this plane also, ठीक है. तो there are infinite number of planes possible, ठीक है, where this molecule can vibrate. ऐसा नहीं कि ये प्लेन तो 1, 2, 3, कैन यू काउंट हाउ मेनी प्लेन्स आर पॉसिबल? इनफिनिट नंबर ऑफ प्लेन्स पॉसिबल, राइट. इसलिए भी इसकी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू n हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द मॉलिक्यूल की वो कहाँ कहाँ वाइब्रेट कर रहा है, या डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर, द अदर फैक्टर्स आल्सो. यू एग्री? ठीक है, समझ में आएगा इसमें कोई डाउट? ओके, एंड लास्टली यू शुड नो व्हाई दिस काउंटिंग ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज there is something called as law of equipartition of energy. Equipartition of energy, which says that each degree of freedom contributes to half kT of energy. समझा क्या? ठीक है, each degree of freedom will contribute to half kT of energy. So each translational degree of freedom will contribute to half kT of energy. Okay, each rotational degree of freedom
विच कॉन्ट्रीब्यूट टू हाफ kT ऑफ एनर्जी. ईच वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू हाफ kT प्लस हाफ kT, that is equal to kT. Why? Because you understand the motion is to and fro. In any plane you are not moving in unidirectional, it will be to and fro, right? तो हाफ kT ये वाले मोशन का, हाफ kT ये वाले मोशन का, तो हाफ प्लस हाफ इज kT. जनरल टर्म, जनरल से क्या बोलता है ये कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉन्ट्रीब्यूट्स टू हाफ kT ऑफ एनर्जी, बट यू अंडरस्टैंड वाइब्रेशन में वो kT प्लस kT, हाफ kT प्लस हाफ kT विल बी kT. इज मेकिंग सेंस? ठीक है, ये सब चीज एमसीक्यू से पूछते हैं वो लोग, समझ में आएगा तो पता होना चाहिए, ठीक है. ऑल्सो व्हाट दे डू इज कि जैसे मोनोटॉमिक में मैंने बोला है कि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है, एंड डाया में यू हैव 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड देन ट्राई लीनियर में यू हैव 7, एंड देन ट्राई नॉन लीनियर में यू हैव 6, राइट, ठीक है. तो यू शुड नेम इट, यहाँ पे मैंने लिखना चाहिए एक्चुअली. दिस इज मोनो, दिस इज डाया एटॉमिक, दिस इज ट्राई लीनियर, and this is try non-linear. Okay, but you should understand कि अगर हायर टेम्परेचर पे जाएंगे अपन, वेरी हॉट टेम्परेचर्स पे, क्या होता है कि वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज, ठीक है. तो जनरली एट हायर टेम्परेचर्स व्हाट वी डू इज वी इंक्रीज 1 more डिग्री ऑफ फ्रीडम. समझ में आ गया? तो 1 वाइब्रेशन ऐड कर देते हैं उसमें. इज मेकिंग सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है. तो वी आई जस्ट एडेड हियर, ठीक है, ये भी नोट्स जैसा लिख लो. तो यू विल सी दैट कि लॉट ऑफ केसेस में दे डू इट कि नोट at higher temperatures, okay, 1 vibrational DOF is added. ठीक है. तो अभी इससे क्या मालूम पड़ता है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ मोनोटॉनिक मॉलिक्यूल, जैसे H दिया है मुझे, ओके, एंड दे आस्क मी कि व्हाट इज एनर्जी ऑफ दिस मॉलिक्यूल. H इज मोनोटॉमिक, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 3, एंड ईच डिग्री ऑफ कंट्रीब्यूट्स टू हाफ kT ऑफ एनर्जी. तो इसका एनर्जी कितना होगा मॉलिक्यूल का 3/2 kT. समझा? अगर हाइड्रोजन एटम दिया है तो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इजंट इट, ठीक है. हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम? 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट्स टू हाफ kT ऑफ एनर्जी. तो हाउ मच एनर्जी आई हैव? 5/2 kT, है ना, ठीक है. ओके, तो ये ऐसा हो गया, मतलब मोनो का हो गया, ठीक है, डाया का ले लिया. ओके, ट्राई का करना है तो ट्राई, अगर ट्राई में भी यू हैव 2 कैटेगरीज, लीनियर एंड नॉन लीनियर. नॉन लीनियर के लिए क्या होगा? लीनियर के लिए यू हैव, ये 6 है, नहीं, दिस वन इज 7, दिस इज 6. तो यहाँ पे 7/2 kT एंड यहाँ पे तो 3 kT, करेक्ट, ठीक है. नाउ समटाइम्स दे टॉक अबाउट पॉली एटॉमिक. नाउ पॉली का बात करने का 2 तरीका है, ठीक है. ओके, एनसीईआरटी में व्हाट दे हैव डन, ओके, या नॉर्मल बुक्स यू सी जैसे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हैव F डिग्री ऑफ फ्रीडम, विच मेक सेंस ना, क्योंकि पॉली में कितना भी हो सकता है, वाइब्रेशन तो कितना नंबर का कोई फिक्स नहीं है, ठीक है. तो वाइब्रेशन कुछ भी हो सकता है, तो पॉली में दे से कि इट इज F, ओके, विच मेक सेंस, राइट. बट इन सर्टन बुक्स लाइक HSC टेक्स्ट बुक या रेफरेंस बुक्स में भी ऐसा होता है कि दे विल राइट पॉली का डिग्री ऑफ फ्रीडम एज 6+N, ठीक है, या 6+F लिखते हैं, मैं 6+N लिख रहा हूँ, so that you have a differentiating factor, ठीक है. 6+N का मतलब क्या पता है क्या? 6+N वो ये बोलता है कि तेरे पास 3 ट्रांसलेशन तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 3 रोटेशनल भी रहेगा ही रहेगा, ठीक है. सी वाइब्रेशनल अकाउंट कैन बी एनीथिंग, राइट. तो इसलिए वो 6+N लिख देते हैं. तो वहां पे N क्या है? नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. इफ आई राइट पॉलीएटॉमिक इज 6+N, बट आई एम ट्राइंग टू से इज द, ये N क्या है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन. आई एम अज्यूमिंग दैट कि वो 3 रोटेशनल और 3 ट्रांसलेशन पहले से ही है, ठीक है. उसके ऊपर वाइब्रेशन कितना वो मुझे नहीं मालूम, ठीक है. इफ आई राइट F, देन आई जस्ट से जनरल, ये भी क्यों ही काउंट करना, जब N ही लिखना था तो F ही लिख देते हैं, ठीक है. ये भी 6 भी क्यों रखना था तुमको, समझ में आएगा? आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है. तो बोथ द थिंग्स आर करेक्ट. इफ आई राइट F इज आल्सो फाइन, इन जनरल के लिए F भी लिखा तो भी चलेगा और 6+N लिखा तो भी चलेगा. समझो मतलब, अगर 6+N लिख रहा है तो वहां पे इसका मतलब N का क्या है, ठीक है, वाइब्रेशनल, और 6 में क्या रखा है? 3 रोटेशनल और 3 ट्रांसलेशन बाय डिफॉल्ट डाल दिया उसने एज्यूम कर लिया है कि ये 3 तो है ही है, उसके ऊपर कितना रहेगा तुम देख लो. आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है. तो बोथ टर्म्स आर गुड. तो इफ आई टेक दिस एज माय रेफरेंस, तो माय क्या रहेगा? F into हाफ kT, तो F/2 kT मिलेगा मुझे, है ना. और इसको रेफरेंस लिया तो देखो क्या करना पड़ेगा, 6 into हाफ kT करना पड़ेगा, बिकॉज ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल गिव्स मी हाफ kT, ठीक है. एंड वाइब्रेशनल के लिए कितना करना पड़ता है, ठीक है. वाइब्रेशनल के लिए एक वाइब्रेशनल कितना देगा अपने को? kT देगा ना. तो प्लस क्या बोलते हैं? N times kT. तो दैट मेक्स इट हाउ मच? 3+N kT. I hope you are getting this. So you might see this kind of terms, 3+N kT या F/2 kT. So don't get confused.
समझा ना? को मैंने 3+n लिखा है, बट 3+f भी लोग लिखते हैं, बट अगर 3+f लिखा है मतलब समझ जाओ कि वो f क्या है, वाइब्रेशन। तो ये 3 वाला टर्म 6 वाला टर्म तो समझ के रखो, प्लस प्लस कुछ किया तो वाइब्रेशनल है वो। इज इट मेकिंग सेंस? समझ में आया क्या? इन जनरल पॉलीएटॉमिक तो जनरल जैसा हो गया, तो क्या आएगा इन जनरल, अगर इन जनरल लेके चलूँ मैं, तो अगर पॉली के लिए ले लिया या ऐसे जनरल लिखना है मुझे, तो आई कैन से दैट ईच मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल, लेट्स से दिस वन मॉलिक्यूल may have f degree of freedom, f DOFs, ठीक है, ओके। So therefore I can say that energy of one molecule, kinetic energy of one molecule, kinetic energy of one molecule is also termed as kinetic energy per molecule, ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। And that will be what? f into half kT, that is f by 2 kT। we discuss this अभी, समझ में आ रहा है ये? अच्छा, एक मॉलिक्यूल का एनर्जी इतना है, ठीक है, तो एक मोल का कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी पर मोल चाहिए तो कितना मिलेगा? इनटू Na कर देंगे ना, तो हाफ बाई 2 kT है ना, एक मॉलिक्यूल का पता है और पूरे मोल का चाहिए तो इनटू Na कर दो। एंड इफ यू रिमेंबर K वाज R अपॉन Na, ठीक है, तो Na कैंसल, वी गेट F by 2 RT। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या ये चीज? ठीक है। ऑल्सो इफ आई वॉन्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल्स, एक मोल का इतना है, अगर n मोल्स रहेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस का जनरल फॉर्मूला n मोल्स है ना, n मोल्स, ठीक है। तो क्या मिलेगा? यू विल गेट f by 2 nRT, और वी कैन राइट इसको f by 2 PV। चमका? ऐसा समझ में आ रहा है क्या? बहुत सा नहीं ये चीज, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज द जनरल फॉर्मूला, दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। इसको हम जनरल फॉर्मूला ट्रीट कर सकते हैं, राइट? Isn't it? And you must have learned in thermodynamics कि dq is equal to du plus dw। वो du क्या है? इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, सुना है क्या? dq is heat supply to, du क्या है? एंड यू नो दैट कि du इज अ स्टेट फंक्शन, राइट, है ना, पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन, ठीक है। उसका फॉर्मूला फिक्स है, तो क्या फॉर्मूला है उसका? एनसीडीटी में पढ़ते हो, उसका एक्चुअली फिक्स फॉर्मूला ये भी है, बिकॉज डी मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। गैस का कौन सी एनर्जी है? एक ही तो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो नेक्स्ट चैप्टर में दिस बिकम्स द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, समझा? तो wherever I have to put du, I'll put this। I hope you understand कि गैस के पास एक ही एनर्जी है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल पोटेंशियल तो है ही नहीं, ठीक है। तो ओनली एनर्जी गैस मॉलिक्यूल हैज काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी फॉर गैस ऑफ गैस, और आई कैन से दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, बिकॉज गैसेस हैव ओनली काइनेटिक एनर्जी। इज मेकिंग सेंस? समझ में आया फॉर्मूला कैसे डिराइव किया? f by 2 nRT। अब मुझे ये u का फॉर्मूला एक्चुअली, if I convert Ke to u, this is u का फॉर्मूला, du चाहिए, ठीक है, तो f by 2 nR dt करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो we'll do that later when we do thermodynamics। I think this makes sense to you, right? ठीक है, pause the video and you can write graphs here। कंप्लीट है चैप्टर क्या? क्या उसने मेरे को बुलाया है? बेसिक ग्राफ्स है, ऑन रिकॉर्ड है भाई, देखो तो। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल एक्चुअली, यू हैव डन दिस इन योर thermodynamics also, you have done graphs in thermodynamics, right? है ना? तो let's say if I take a process like this, let's take isobaric process. Okay, now before I go for this process diagrams, okay, you should understand couple of things. Basic है, I think we have done this in basic math, but let's do a quick revision because बहुत लोगों को शायद याद नहीं होगा, देख लेते हैं, ठीक है। If y is proportional to x, so how will be the graph? If y is proportional to x, how will be the graph? Straight line passing through origin. समझ में आया क्या? क्योंकि y equal to mx plus c में c नहीं रहेगा, सिर्फ m रहेगा,
Is it making sense? ठीक है. Then if y is inversely proportional to x, then how is the graph? Do you remember? Huh? How is the graph? Rectangular hyperbola. Rectangular hyperbola. ठीक है ना? पता है हमको, right? And if y is equal to constant, then what is the graph? How is the graph? Okay. Straight line? Like this, right? Okay. And if x is constant, then? चलो इतना तो पता है, because we'll use this. We'll use all of these concepts. Okay. I'm not going to do adiabatic का graph, but basic graph करेंगे अभी. Okay. चलो आ जाओ. First thing first. Okay. Isobaric process मतलब P is constant, right? If P is constant, you know PV equal to nRT, तो what can we say? P is constant तो V is proportional to T बोल सकते हैं ना? है कि नहीं? ठीक है. ओके, तो ये सब चीज देखना है. अभी हमको 3 ग्राफ बनाना है. We have to draw 3 graphs. First graph is PV graph. Second is VT graph. Third is PT graph. Okay. Okay. How will be the PV graph? Tell me. P constant graph will be like this, isn't it? है ना? Is making sense? Straight line बोला ना भैया. We discussed this, right? P constant मतलब y-axis constant. There will be a line which will be parallel to the x-axis. Is it making sense, everyone? देखो यहाँ पे this is very important. Okay. So let's say this, we start from point A and we go to point B. The process diagram ऐसे जा रहा है. Process AB चल रहा है. ठीक है. Okay. We have to replicate the same here. Now what will be a VT diagram for this process? V is proportional to T, so the graph should be like this. ऐसे कुछ. It has to pass through the center. Center origin, my bad. ठीक है. Something like this. अब किसको A बोलना है, किसको B बोलना है? ठीक है. इसको A बोला और इसको B बोला तो arrow will go like this. और उल्टा किया तो arrow will go like this. You tell me what should my A point, what should my B point? See, A से B is my volume increasing? Look at this graph ना. A से B में volume बढ़ रहा है क्या? ठीक है. वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही, बिकॉज बोथ आर प्रोपोर्शनल. ठीक है. तो वी हैव टू ड्रॉ इन सच, वी हैव टू मेक ए बी पॉइंट सच इन सच वे दैट कि ए से बी में द वॉल्यूम हैज टू इंक्रीज, राइट. ठीक है. तो ऑब्वियसली क्या कहते हैं, दिस शुड बी ए एंड दिस शुड बी बी. आई होप यू अंडरस्टैंड, बिकॉज सी वॉल्यूम एंड टेम्परेचर बोथ आर इंक्रीजिंग फ्रॉम ए टू बी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना. एरो पॉइंट करना आना चाहिए. ठीक है. बिकॉज वही मेन है. ग्राफ तो सबको पता है वैसे बन जाएगा. ठीक है. हाउ अबाउट पीटी ग्राफ? सेम एज वीटी, सेम एज पीवी ना. वीटी क्यों बोल रहा हूँ? अरे पी कांस्टेंट है ना, तो ये कांस्टेंट है, राइट. समझ में आ गया? बताओ ए किसको, बी किसको? अब देखो ए से भी वॉल्यूम बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो ये होना चाहिए ए और ये होना चाहिए बी. आर यू गेटिंग दिस? समझ में आएगा? पक्का? ठीक है. लेट्स गो अहेड. आइसो कोरिक ले लेते हैं. ओके. प्रोसेस. See, we discuss all this process in detail when you do thermodynamics. Okay. अभी we are just looking at graph का aspect. Okay. क्या है बोलो? This V equal to constant है ना, which means P is proportional to T. Now the three graphs प्राप्त कर लेते हैं. चलो आ जाओ. PV ग्राफ है ना, PV, VT and PT. ठीक है. ओके. चलो PV ग्राफ. V constant parallel to, तो इसको हम लोग A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, and then let's start here. Okay, again V constant, how will be the graph? Parallel to x-axis. ठीक है. A किसको बोलो, B किसको बोलो, बताओ मुझे. A से B में प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर ही बढ़ेगा. टेम्परेचर बढ़ना चाहिए. देखो मेरे पास प्रेशर का इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे. ठीक है. और टेम्परेचर का इन्फॉर्मेशन है क्या? नहीं है ना, बट मिल जाएगा, बिकॉज वी नो प्रेशर एंड टेम्परेचर आर प्रोपोर्शनल. ठीक है. तो दैट मीन्स this has to be A, this has to be B. Are you getting this? समझा? देखो A से B में क्या हो रहा है, प्रेशर इज इंक्रीजिंग, राइट. ठीक है. यहाँ पे आई नो वॉल्यूम इज कांस्टेंट, बट टेम्परेचर इन्फॉर्मेशन दिया है क्या?
नहीं दिया है, पर ये ग्राफ से मिल गया बिकॉज ए से बी प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ना चाहिए बिकॉज इट हैज टू इंक्रीज बिकॉज दे आर प्रोपोर्शनल. मेक सेंस? लुक एट द एरो पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मोर देन द ग्राफ, द एरोज आर इंपॉर्टेंट. ओके, चलो पीटी. पीटी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. ठीक है, इट विल बी लाइक दिस. ऐसे ओरिजिन से लेके ऐसे लेंगे, है ना? ठीक है, चलो अब बताओ ए से बी में क्या होने वाला है. कैसे, किसको ए बनाना है, किसको बनाना है, बी बनाना है. ए से बी प्रेशर बढ़ रहा है एंड टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो इट मेक्स सेंस टू मेक दिस एज ए एंड दिस एज बी. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. इजी पीजी, है ना? समझ रहा सबको? एवरीवन. नेक्स्ट, आइसो. आइसो थर्मल. आइसो मतलब क्या क्या कांस्टेंट है भाई? टेम्परेचर कांस्टेंट है. इसका मतलब क्या है कि P एंड V आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. डू वी एग्री है? चलो ग्राफ्स कर लेते हैं. PV VT PT. ओके, PV ग्राफ कैसे आएगा बताओ? Yes, like this. Okay, let's call this as A and this as B. Like this is going. Okay, any questions? चलो यहाँ पे आ जाते हैं. Okay, VT ग्राफ कैसे बनाऊं? VT ग्राफ में क्या हो रहा है कि भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है. ठीक है, we can just say graph will be like this, है ना? Which point A and which point B? Look at from A to B. What is happening to volume? Is it decreasing or increasing? It is increasing, right? It is increasing. So this has to be A. This has to be, the volume has to increase from A to B. समझ रहा है क्या? समझ रहा है? ठीक है. What next? PT graph. Tell me. Straight line में होने वाला है बॉस. Parallel to y-axis. Temperature constant. A और B बताओ. A से B में क्या प्रेशर कम हो रहा है? ठीक है, तो इसका मतलब this has to be A and this has to be B. Are you getting this? है, समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? ठीक है. ओके, तो ये तीनों ग्राफ्स आर इंपॉर्टेंट एंड बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ दिस we can do this. Okay, we can do conversion for cyclic. conversion पूछते हैं वो लोग और cyclic कर लेते हैं. cyclic process मतलब starts and ends at the same point. Okay, ठीक है. Let's say there is a VT graph like this. Okay, एक VT graph बना लेते हैं ऐसा कुछ. This is our graph. Okay, let's say this is A, this is B, this is C. Arrows are going like this. What I want you guys to do is, I want you guys to draw two graphs. I want to draw PV graphs, and you have to draw PT graph for me. इसका PV और PT का बनाना है. कैसे बनाएंगे तो सुनो, इनको प्रोसेस बाय प्रोसेस समझ में आएगा. AB प्रोसेस को देखो ध्यान से. कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट. ठीक है. AC या CA प्रोसेस कौन सा है? टेम्परेचर कांस्टेंट, है ना? और ये वाला B प्रोपोर्शनल टू T, प्रेशर कांस्टेंट. समझ में आ गया? तो एक एक को करोगे तो आएगा आंसर साइक्लिक ही होना चाहिए. घूमना ऐसा क्लोज फिगर है तो कहाँ भी क्लोज फिगर है, कैसा शेप होगा दैट डिपेंड्स फ्रॉम द प्रोसेस टू प्रोसेस. मेकिंग सेंस? ठीक है, पॉज करो. ठीक है, एंड ट्राई करो. The basic approach is first is to realize कि what is what process. So let's say AB is my isochoric. Basically means volume is constant, right? If volume is constant, we can say that कि pressure and temperature are proportional. Okay. So अच्छा, यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे we'll get graph like this. Okay, something of this sort. This is the graph because AB the volume constant. Volume constant means this will be in this case it will be volume constant is graph parallel to the y-axis, right? Line parallel to y-axis. Listen to me very carefully now. Okay. Now which one AB? Which one A? Which one B? See, A to B temperature is increasing, so pressure should also increase. A to B temperature is increasing. Okay, so A to B temperature is increasing, hence you can say that pressure should also increase. This has to be A, this has to be B. Any questions, anyone? Are you getting this point? पक्का? अब देखो यहाँ से थोड़ा सा
you have to understand what thing, how things go. Okay, look at the next process. BC. BC में क्या हो रहा है बताओ? BC में कौन सा प्रोसेस है? ये V proportional T दिख रहा है ना? Which means pressure is constant. ठीक है, तो yes, isobaric is correct. If it's isobaric, how about the PV graph? मतलब P का मतलब पैरेलल टू योर x एक्सिस होना चाहिए, राइट? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ध्यान से देखना, मतलब ये A और B है ना, ये A है और ये B है, तो पैरेलल इस तरह भी बना सकते हैं या पैरेलल इस तरह भी बना सकते हैं। तो चमका मतलब मैं पैरेलल A से B, ये A से B है ना, तो यहाँ भी C हो सकता है और यहाँ भी C हो सकता है, isn't it? तो देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, मतलब यहाँ अगर ऐसे बनाएंगे अगर, ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम विल इंक्रीज। ऐसे बनाएंगे अगर तो वॉल्यूम विल डिक्रीज। यू हैव टू सी व्हाट इज हैपनिंग इन द प्रोसेस, ठीक है, इन अवर प्रोसेस, ठीक है, ए से बी में व्हाट इज हैपनिंग कि ए से बी क्या वॉल्यूम, सॉरी बी टू सी, सॉरी माय बैड, बी टू सी क्या हो देखना पड़ेगा, तो बी टू सी, ठीक है, टेम्परेचर इज रिड्यूसिंग, राइट, है ना, एंड वॉल्यूम आल्सो रिड्यूसिंग। बी से सी में क्या हो रहा है, ऐसे आ रहा है ना ग्राफ, तो वॉल्यूम कम हो रहा है ना, टेम्परेचर भी कम हो रहा है, वॉल्यूम भी कम हो रहा है, ठीक है, तो ये बनाया अगर, ठीक है, तो वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा, तो इधर आना चाहिए ग्राफ, इस तरफ, ठीक है। तो व्हाट आई शुड डू इज आई शुड स्लाइटली शिफ्ट दिस, माय ग्राफ शुड बी लाइक दिस, इसको यहाँ ठीक है, इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, दिस इज बी एंड दिस इज सी, because the volume has to decrease. I hope you are able to understand what is happening here. समझा ना, ठीक है, कैसे बन रहा समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। How many of you got this part correct? 3 लोग, 4 लोग, गुड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे थे। C2A बताओ, C2A क्या हो रहा है? C2A में क्या हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, T कांस्टेंट, आइसोथर्मल वाला प्रोसेस है, ठीक है, आइसोथर्मल है ना, आइसोथर्मल है तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, है ना। अब क्या करना है भाई, इनवर्सली रेक्टेंगल यहाँ पे बोला, तो अब ये तो सिंपल ही इन दोनों कनेक्ट करना है, तो ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे, है ना। किससे किसको राइट आया भाई, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, ठीक है। हाउ मेनी गॉट 2 ग्राफ्स करेक्ट, हाउ मेनी गॉट ओनली 1 करेक्ट, ठीक है, ठीक है। नाउ यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट, I want you to try that sum if you have not tried it. Pause करो। Okay, look at this. Let's start again. PT ये दे दो, PT A से B चालू करते हैं। PT ग्राफ V कांस्टेंट है, PT ग्राफ will be straight line passing through origin, something of this sort, isn't it? Okay, and you must know that कि A किसको ले और B किसको ले। A से B में your temperature is increasing, so definitely it has to be like this, okay, and then BC में what is happening, BC में क्या बोलते हैं, your P is constant, right, P is constant, उधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है ना, तो P constant BC में, but volume is decreasing, so pressure should BC, so temperature is decreasing, टेम्परेचर कम हो रहा है ना, तो ऐसा ना चाहिए, ठीक है, बराबर बोल रहे हो, ओके, है ना, बिकॉज बी से सी में, बी सी व्हाट इज हैपनिंग, योर टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, राइट, ठीक है, तो इट हैज टू बी लाइक दिस, करेक्ट, है ना, बिकॉज प्रेशर इज कांस्टेंट, परफेक्टली राइट। व्हाट एल्स डू वी हैव, सी ए, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट, सो सिंपल ना, जस्ट फाइंड दैट, करेक्ट, दैट्स द आंसर। हाउ इज got correct? थोड़ा समझ में आया ना कैसे चल रहा है, ठीक है, एक और ट्राई करेंगे, ठीक है, एक और ट्राई करेंगे, try this one, let's say this is some VT graph, rectangle A B C D, this is the graph that you have to draw. I want you guys to draw the PT graph. Pause the video and try it. See here, AB or CD, both are what?
थर्मल 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 है ना, मतलब टी कांस्टेंट, P is inversely proportional to V, correct? And your BC and AD, isocoric, and that would be क्या बोलते हैं V constant, isn't it? And that means this, ठीक है ना? Now look at this. So I know that, देखो यहाँ पे PT ग्राफ बनाना है, ठीक है? तो आइसोथर्मल ग्राफ कैसे आएगा? स्ट्रेट लाइन है ना, ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस. एंड PT ग्राफ कैसे आएगा? Straight passing origin. So I know that कि इसी को something, I just dot some reference line here. See if it makes sense to you. Okay. Straight line passing through origin. Okay. What I'll do is I'll say, देखो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, समझो इसको, ठीक है? I'll say AB बनाते हैं पहले. AB क्या है? T constant ना, तो T constant will be like this. देखो यहाँ पे करते हैं पहले. ए नीचे की ए ऊपर? ए से बी में क्या बोलते हैं? वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, राइट? प्रेशर डिक्रीज होगा, तो ए बी सही है ना? देन बी टू सी इज दिस, राइट? ठीक है, इट विल बी बी टू सी क्या हो रहा है? तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो ग्राफ लाइक दिस है. ओके फाइन. तो व्हाट आई शुड डू पता है क्या? एंड थोड़ा सा take it नीचे. So what I've understood, right, like this, A, B, and then B to C, this is happening, right? ऐसे, है ना? ऐसे. B to C चलेगा क्या? समझ में आ रहा है मैं कैसे कर रहा हूँ? देखो बच्चे लोग, ठीक है? नेक्स्ट, आई ग्राफ विल बी लाइक दिस ओनली. इसको ऐसे लेके जाओ, और ये जहाँ भी ज़्यादा बड़ा बना दिया क्या मैंने? थोड़ा छोटा कर देता हूँ. ओके, एंड देन दिस इज BC एंड दिस विल बी लाइक दिस. ऐसा कुछ, ये लाइन इसको ऐसे मिलनी चाहिए. आई होप यू गेटिंग इट. समथिंग एल्स, ठीक है? ऐसा कुछ. That's my graph. ठीक है? Getting it क्या? See, you understand, मतलब दोनों ही, both of these lines should start from origin like this. That's why I draw the reference line. मुझे पहले से बताया था, ठीक है? तुम भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, है ना? इतना ऐसा नहीं बना सकते. देखो तुम समझो, मतलब कि ग्राफ ऐसे नहीं बना सकते तुम. ऐसे बनाया, ठीक है, और दूसरा लाइन, एक लाइन ऐसे जा रहा है और एक लाइन समझो यहाँ से पास, ऐसे नहीं होना चाहिए ना. Both the lines should pass through origin. That you should understand. ठीक है ना? The ABC and your this AD, they have to pass through origin. Getting it? समझ में आया कि नहीं भाई? आया तो कर लो, लिख लो. Yeah, that was the theme, right? Will you try PV graph? Try. Let's try PV graph also. See, same logic we'll use. Okay, you know that key ABCD are isothermal process and BCAD are isochoric, isn't it? Okay, now PV graph. तो थर्मल का ग्राफ PV का कैसे आता है? It will be like this, ना? Hyperbola. So you have to have two curves which are rectangular hyperbolas. Secondly, isochoric कैसा होगा इसका? Volume constant, है ना? तो इट बी स्ट्रेट लाइन ना. तो मुझे पता है कि ऐसा ऐसा कुछ रहेगा, एंड देन क्या विल हैव कर्व्स लाइक दिस, समथिंग ऑफ दैट. सो विल सी हाउ इट वर्क्स. देखते हैं. ओके, वी स्टार्ट विद AB ऐसा है, ठीक है? ए से बी में प्रेशर इज, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, राइट?
ऐसा ग्राफ आना चाहिए, है ना? एंड देन BC वॉल्यूम कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन, है ना? एंड देन वापस C to D ऐसे, हाँ है ना? B2 है वापस स्ट्रेट Okay, and then B2A वापस, it has to be like something of this sort. ऐसा होना चाहिए, correct? Something of this sort you should get. Okay? Are you getting this? कहाँ? थोड़ा समझ में आया क्या चल रहा है? Okay. This is I think enough. Okay. पॉज कर दो. We'll continue next lecture. Okay. चैप्टर हो गया है एक्चुअली, कुछ ज़्यादा खास बचा नहीं है.